أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. ہم لوگ شروع کر رہے ہیں آج اپنی 20th کلاس اور دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہم لوگوں نے جو پچھلی کلاس میں سیکھا تھا اس کا کیا یوز ہے. اب تک ہم لوگ 3 مرکب سیکھ چکے. سب سے پہلے کون سا مرکب سیکھا تھا ہم لوگوں نے؟ مہر آپ بتائیں، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے کوئی؟ مرکب توصیفی. جی ہاں، جزاک اللہ خیر. تو سب سے پہلے ہم نے سیکھا تھا مرکب توصیفی. اس کے بعد کیا سیکھا تھا مہر؟ میم اس کے بعد ہم نے سیکھا تھا مرکب جاری، مرکب اشاری، پھر مرکب جاری. جی ہاں، مرکب جاری سیکھا تھا ہم نے، اور مرکب جاری سیکھتے وقت ہم نے حرف جر بھی سیکھے تھے نا. یس میم. اور آج سیکھیں گے 4th مرکب، مرکب اضافی. جیسا کہ ہم نے کہا کہ مرکب جاری اور مرکب اضافی یہ 2 مرکب بہت کثرت سے ہیں قرآن میں، تو بہت غور سے اس کو سمجھیے گا. آسان ہے بہت، اور کیونکہ جب آپ اس کو سمجھ لیں گی تو جب آپ اپنی تجوید یا تفسیر یا ورڈ ٹو ورڈ کریں گی تو آپ کو یہ بہت زیادہ نظر آئیں گے اور آپ آرام سے پہچان سکیں گی. مرکب اضافی کہتے کس کو ہیں؟ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی ہم لوگ کر رہے ہیں مرکب ناقص، مطلب ایسا مرکب جو انکمپلیٹ ہو. مرکب ناقص، یہ مرکب ناقص کی 4تھی قسم ہے. اس میں یہ 2 اسما کا ایسا مرکب ہے جس کے درمیان ملکیت کا تعلق ہو. مطلب ایک پوزیشن جس کو کہہ سکتے ہیں انگلش میں، ایک اسم سے دوسرے اسم کا تعلق پتہ چل رہا ہو اور ملکیت کا بھی ملکیت کا احساس ہو رہا ہو. جیسے آپ نیچے اگزامپل دیکھیے اردو میں، اللہ کا گھر، تو اللہ ایک اسم ہے اور گھر دوسرا اسم ہے. اور اردو میں یہ لفظ کا بتا رہا ہے ہم کو کہ گھر کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ تعالی سے ہے. ٹھیک ہے، تو ان 2 اسما کے بیچ کا تعلق پتہ چل رہا ہے. گھر کا تعلق کس سے ہے؟ دوسری بات، ایک بات یہاں سمجھ لیں کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ کا گھر تو مطلوب اسم کیا ہوتا ہے؟ مطلب جب ہم کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں بیت اللہ، جب ہم کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں اللہ کے گھر یا بیت اللہ، تو ہم گھر جا رہے ہوتے ہیں نا، تو مطلوب چیز گھر ہے. اسی طرح زید کی کتاب، جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کتاب زید کی ہے یا زید کی کتاب لاؤ، تو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کتاب ہمارا مطلوب ہے، زید نہیں. زید سے اس کا تعلق بتایا جا رہا ہے. تو اس طرح کے مرکب کو مرکب اضافی کہتے ہیں، کیونکہ اس سے ملکیت یا اضافت کا پتہ چلتا ہے. اسی سے یہ ورڈ مرکب اضافی آیا. تو آج ہم دیکھیں گے اس طرح کا مرکب جس کے بیچ میں آپ دیکھیں گے 2 اسما کے بیچ میں کا، کی، کے آ رہا ہوگا. مرکب اضافی اس کے بھی 2 اجزاء ہیں. جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ مرکب توصیفی کے 2 اجزاء، مرکب اشاری کے 2 اجزاء اور مرکب جاری کے 2 پارٹس. اس کے بھی 2 پارٹس ہیں. پہلا کہلاتا ہے مضاف اور دوسرا کہلاتا ہے مضاف الیہ. اسی مرکب اضافی نام سے یہیں سے آپ دیکھ لیں کہ اسی سے یہ ورڈ ڈرائیو ہوا ہے. تو پہلا کیا ہے؟ پہلا اسم کہلائے گا مضاف اور دوسرا اسم کہلائے گا مضاف الیہ. ابھی اگزامپل میں دیکھیں تب آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. جیسے یہ ہے رسول اللہ، مطلب اس کا کیا ہوا؟ اللہ کا رسول. اس میں جو پہلا لفظ ہے رسول، یہ ہوگا مضاف، اور دوسرا اسم اللہ یہ بنے گا مضاف الیہ. ٹھیک ہے، اور اس طرح سے ہمارے یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ مل کے بنتے ہیں مرکب اضافی. ترجمہ اس کا ہوگا اللہ کا رسول. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ترجمہ اس کا بھی کرس کراس ہے. اردو میں جب ہم کریں گے تو پہلے ہم یہ بولیں گے، پھر بیچ میں کا لگائیں گے اور پھر مضاف آئے گا. تو اردو میں ترجمہ الٹا ہے. اس کا مطلب اس کو بھی پھر ہم کرس کراس سے ہی کریں گے، جو کہ آگے ہم بتاتے ہیں.
یہ پیج آپ کی اس PDF کا سب سے امپورٹنٹ پیج ہے. اس کو آپ کو بہت اچھے، بہت آسان ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کا کوئی بھی پوائنٹ آپ مس نہیں کر سکتے. قواعد دیکھتے ہیں کہ پہلے مضاف کے کیا قواعد ہے. مضاف آپ سمجھ رہی ہیں نا، پہلا والا ورڈ، پہلا لفظ. مضاف کے اوپر کیا قواعد لگتے ہیں، کیا رولز لگتے ہیں. مضاف ہمیشہ دیکھیں یہاں پہ ہمیشہ ورڈ آ گیا، لام تعریف کے بغیر آئے گا. مضاف پہ کبھی بھی ال نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، مضاف پر کبھی بھی ال نہیں آئے گا. اور دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ اس کا اعراب ہلکا ہوگا. ہمیشہ مضاف کا اعراب ہلکا ہوگا. تو آپ کو شروع اور اینڈ دونوں میں ہی چیزیں دیکھنی ہے کہ شروع میں ال نہیں ہونا چاہیے اور بعد میں تنوین یا نون اعرابی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ جب شروع میں آپ اسم کر رہے تھے تو اس وقت بتایا گیا تھا آپ کو کہ اسم کی پہچان جب بتائی گئی تھی تو یہ بتایا گیا تھا کہ ایک پہچان اس کی ہے کہ ال سے شروع میں ال آتا ہے اور آخر میں تنوین آتی ہے. تو شروع میں کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ ان دونوں میں سے ایک چیز آنی ضروری ہے. اب آپ کو پتا چلا کہ کچھ اسما ایسے بھی ہوں گے جس پہ نہ ال آ رہا ہوگا نہ تنوین آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے، مضاف کی حالت میں جب کوئی اسم ہوتا ہے تو اس کا اعراب ہلکا ہوتا ہے. تو مضاف کی دو کنڈیشن کیا ہے؟ شروع میں ال نہیں ہوگا اور آخر میں اعراب ہلکا ہوگا. ہم یہاں پہ یہ ورڈ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ آخر میں تنوین نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ اگر ہم صرف تنوین کا ورڈ یوز کر لیں، اعراب ہلکا ورڈ یوز نہ کریں، تو ہمارے نون اعرابی کا کیس مس ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس لیے ہم یہاں پہ پوائنٹ نمبر 2 میں ہم کہیں گے اعراب ہلکا ہوتا ہے. اور جو لوگ لیٹ جوائن ہوئے ہیں، اس ریگولر کلاس میں جوائن ہوئے ہیں، ان کو ہم بتا دیں کہ اعراب ہلکا کے لیے اس قسم کے ہلکا ہونے کو خفیف بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، خفیف، تو اس کا اعراب خفیف ہوتا ہے. آپ ایسا بھی کہیں پڑھ سکتی ہیں. تو یہ ہو گئے ہمارے مضاف کے قواعد. مضاف کو یہ دو چیز ہر حال میں فالو کرنی ہے. اگر ان دونوں چیز میں سے کوئی ایک چیز بھی مسنگ ہے تو وہ مضاف نہیں ہوگا، وہ کچھ اور ہوگا. مضاف الیہ کے لیے کیا قانون ہے؟ ان کا قانون یہ ہے، جو کہ یہ بھی دیکھیں یہاں بھی ورڈ ہمیشہ کہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یہ حالت جر میں ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے مرکب جاری میں نے پہلے کرائے اور اس وقت حرف جر بھی کرائے کہ جس سے آپ کو یہ مجرور اور جر میں کیسی چیزیں جاتی ہیں، کیا شکل ہو جاتی ہے، ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہو. تو مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوگا اور یہ لام تعریف یا تنوین کے ساتھ ہوتا ہے. یا اس پہ لام تعریف ہوتی ہے یا اس پہ تنوین ہوتی ہے. ایک بار پھر ریپیٹ کر دیں کہ مضاف الیہ حالت جر میں ہوگا اور یہ مضاف الیہ شروع میں ال ہو سکتا ہے یا آخر میں تنوین ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئے ہمارے. بس اگر آپ کو یہ 4 پوائنٹس یاد ہے تو آرام سے مرکب بنتے چلیں گے. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ ترجمہ کیسے ہوگا اردو سے عربک میں اور عربک سے اردو میں. یہاں بھی اردو میں ہم بولتے ہیں زید کی کتاب. حالانکہ دیکھیں مطلوب ہمارا کتاب ہے، لیکن جس کی کتاب ہے پہلے ہم اس کا نام لیتے ہیں زید کی کتاب. لیکن عربک میں جب اس کا ترجمہ کیا جائے گا تو یاد رکھیں کہ اگر آپ کو یہ مرکب دیا جاتا ہے تو آپ کرس کراس تریر کا استعمال کریں گے اور پہلے کتاب کی عربک لکھیں گی. کتاب کی عربک کیا ہوگی؟ کتابن. اور یہ بن گیا، ابھی تو مضاف نہیں بنا، ابھی تو کتابن ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد زید پھر ایرو لگائیں گی آپ اور بعد میں لے کے جائیں گی اور یہ ہو جائے گا زیدن. اب آپ کو کتابن کو مضاف بنانا ہے. اب آپ کو اس کے اوپر مضاف کے قواعد اپلائی کرنے ہوں گے کتابن پہ. پہلا رول کیا تھا کہ شروع میں ال نہیں ہونا چاہیے، تو وہ تو یہاں موجود نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں دوسرا پوائنٹ، اعراب ہلکا ہونا چاہیے. تو یہ تنوین ہے، اس تنوین کو ہم کیا کر دیں گے؟ سنگل حرکت سے بدل دیں گے اور یہ ہو جائے گا کتابو. اب ہمارا مضاف ریڈی ہے. اب چلتے ہیں مضاف الیہ کی طرف. زیدن یہ حالت رفع میں ہے
पहली शर्त उसकी क्या थी कि ये मजरूर होना चाहिए, ठीक है, और ये तन्वीन या अल के साथ आ सकता है, इसमें इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ज़ईदुन को आप हालत जर में ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा, ज़ईदिन, और तन्वीन मौजूद है, तो ये आपका हो गया, आपका ये मुरक्कब तैयार, किताबु ज़ईदिन, और ये हो गया मुरक्कबे इजाफी। और इसका तर्जुमा जब होगा तो आएगा जैद की। फिर जब आप तर्जुमा करेंगी तो फिर क्रिस क्रॉस तीर का इस्तेमाल करेंगी, पहले आप कहेंगी जैद और फिर इजाफत का उर्दू वाला लफ्ज लगाएंगी का की के, इन केस ऑफ मतलब गायब और हाजिर, और मुतकल्लिम यानी खुद के लिए तो हम फिर हमारा या मेरी भी लगाते हैं ना, मेरी किताब, तो यहाँ पे हो जाएगा जैद की किताब, आपको की का इजाफा करना होगा उर्दू में तर्जुमा करते वक्त। अल्लाह का घर, इसका आपको अरबिक में इसका तर्जुमा करना है, तो आप कैसे करेंगी, पहले आप क्या करेंगी? मैम पहले हम घर लेंगे, यानी कि बैतुन जो है। ठीक है, घर लेंगे, और आपने बिल्कुल सही बताया, बैतुन करेंगे, ठीक है। जी मैम। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगी? मैम फिर जो अल्लाह का है, यानी कि फिर हम इसको लेंगे, ये था इसका अल्लाहू, अल्लाहू था, वेरी गुड, तो जी। इसको हम जर में ले आएंगे, नहीं नहीं, अब अल्लाही। चले फिर वापस चलते हैं, पहले मुजाफ को तैयार करें। अब जी मैम। ये आपने दोनों वर्ड्स ले लिए, ठीक है, बैतुन और अल्लाहू, बिल्कुल सही आपने किया। अब आप पहले मुजाफ को रेडी करें। जी मैम। ये जो बैतुन है इसको हम हल्का करेंगे, बैतू हाँ, बनाएंगे। बैतुन है, इसको हल्का करेंगे और बैतू कर देंगे, ठीक है। और जी मैम। इसको क्या करेंगी? मुदाफ। अल्लाहू हम्म, बैतुल्लाह। तो मैम इसको हम जर में ले आएंगे ना, जी हाँ, क्योंकि जो मुजाफ इलैहि मजरूर होता है। बिल्कुल। तो आपका क्या बन गया मुरक्कब इजाफी, कैसे क्या बना, क्या शक्ल हुई बैतुल फाइनल? बैतुल्लाही। बैतुल्लाही, वेरी गुड, वेरी गुड सलमा, बहुत ही अच्छा, इजी लग रहा है। जी मैम, बिल्कुल इजी लग रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दैट्स गुड। ताहिरा आप आ जाएं प्लीज, जजाकल्ला सलमा। ताहिरा, जी मैम। उसके बाद शमीम ग्रुप 1 की रेडी रहे। इसका आप करें अल्लाह की किताब। किताबुल्लाह। आपने तो एकदम इंस्टेंट बना दिया। चले, पहले इसका तर्जुमा करें। अल्लाह की किताब। हाँ, मैम किताब इसमें मुजाफ है, नहीं नहीं, अल्लाह मुजाफ। हाँ, आप ऐसे अल्लाह मुजाफ। प्रॉपर, नहीं नहीं, ये जी स्टेप जी बाय स्टेप चले। आप कहें जी अल्लाह जी की किताब है, इसका तर्जुमा करना है, तो पहले हम किताब किताब की अरबिक लिखेंगे, जो कि होगी जी मैम। किताबुन, जी ठीक मैम। है। उसके बाद अल्लाह की, और ये होगा अल्लाहू, क्योंकि कोई भी चीज बाय डिफॉल्ट यानी एक जब हम उसका नाम लिखते हैं तो रफा की हालत में ही होती है चीज, इसलिए आप देखिए दोनों ही आपने रफा में लिखा, ठीक है। जी अब आप क्या करेंगी ताहिरा? मैम, ये जो किताबू ना, इसका इराब हल्का करेंगे ना, ये किताबू हो जी जाएगा, जी, और अल्लाह हाँ के नीचे जेड लग जाएगी आखिर में। हाँ, जी हाँ, लफ्ज अल्लाह को हालत जर में लेते हैं, तो ये हो जाएगा किताबुल्लाही, ठीक है। जी जज़ाकल्लाह खैर। ताहिरा के बाद शमीम। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी चलिए आप बताना शुरू करें, मैं लिखना शुरू करूं? पहले रसूलुन आएगा वेरी और गुड। अल्लाहू। अल्लाहू, जी, मैं रसूलुन की बार बार तनवीन। ये क्रॉस, जी ये क्रॉस तीर मैं बार बार लगा रही हूँ कि आप लोग के जहन में अच्छी तरह दिखने से ना वो हो जाए। तो रसूलुन जी और अल्लाह, हाँ अब जी, बताएं आप, अब क्या करेंगी, वापस आए आप मुदाफ पे। रसूलुन के अराब हल्का करेंगे तो रसूलू बन जाएगा। हम्म, अल्लाहू का को मजरूर की हालत में लाएंगे तो अल्लाह ही बन जाएगा। जी हाँ, लफ्ज अल्लाह को हालत जर में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा अल्लाह ही। तो अब आपका मुरक्कब क्या तैयार हुआ? रसूलुल्लाही। वेरी गुड, ठीक है, जजाकल्ला शमीम, बहुत ही जबरदस्त। अब चलते हैं, समीना आ जाए ग्रुप 3 की।
جی میم. بتائیں آپ. بندہ عبدن جی اللہ ہاں ویری گڈ. اور اس کو جب عراب کو ہلکا کریں گے تو عبد اللہ بن جائے گا. ویری گڈ ویری گڈ. یہ عبد اللہ. جی. ٹھیک ہے. اللہ حالت جر میں چلا جائے گا. جی. جی ہاں لفظ اللہ بولے. ٹھیک ہے لفظ اللہ. لفظ اللہ حالت جر جی میں ہاں چلا جائے گا. یا اس عبد میں اللہ. جلالہ بول دیں یا لفظ اللہ بول دیں یا اس میں جلالہ بول دیں کچھ بھی. ٹھیک ہے. جی جی ٹھیک. ہیرا آ جائیں پلیز. جی جی میری آواز. جی اس کراس ایرو سے ہم پہلے مدد کا ترجمہ کریں گے نصر اور پھر اللہ. ویری گڈ. اور نصر میں یہ مرف پہ لام نہیں ہونا چاہیے اور تنوین کو ہم عراب ہلکا کر کے چینج کر دیں گے نصرو میں. جی اور اس کے بعد لفظ اللہ جب حالت جر میں ہوگا تو اس کے ساتھ زیر لگا کے ہم اس کی پیش کو ختم کر دیں گے اللہ ہی بن جائے گا. جی نصر اللہ. ویری گڈ ماشاء اللہ. اور اس کا ترجمہ ہوگا اللہ کی مدد. ہے نا. تو الحمدللہ سارے لوگ ہی بہت بہترین طریقے سے آنسر کر رہے ہیں اور سمجھ بھی گئے ہیں سب لوگ. الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر احسان ہے. جزاک اللہ ہیرا. بہت ہی اچھا بتایا. انیلا آپ آ جائیے گروپ 2 سے. پہلے میم نعمت کا کریں گے. جی ہاں. جی تو نعمت کا ہوگا نعمتن. جی ہاں. پھر اس کے بعد ہم کریں گے اللہ. اللہ ویری گڈ. اب پھر اب آ جائیں مضاف کو پھر ہم ریڈی کریں. جی جی میم مضاف کو ریڈی کریں گے تو ہم کریں گے نعمتو. اور پھر اس کا وہ اس کو لے کے جائیں گے حالت جر میں اللہ کو تو اس کو کریں گے اللہ ہی. جی ہاں. نعمت اللہ. ویری یعنی کہ گڈ. یہ خفیف اور ساتھ وہ ہو گیا حالت جر. ویری گڈ. تو یہ ہو گیا مضاف کا اعراب خفیف اور مضاف الیہ چلا گیا حالت جر میں. ٹھیک ہے. تو یہ تیار ہو گیا نعمت اللہ. یہ تھے کچھ آسان سے اگزامپل اور آگے بھی سب آسان ہی ہیں. اللہ کا بندہ یہ تو اوپر ہم کر ہی چکے ہیں. یہاں پھر آ گیا اللہ کا بندہ اور دیکھیں کس کا تیار ہو جائے گا عبدن اور اللہ اور اعراب خفیف کریں عبدو اور اس میں جلالہ کا کو حالت رفع سے حالت جر میں لے کے جائیں کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. اب دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی بات کہ کسی بھی اسم کے حالت جر میں جانے کے صرف 2 وجوہات ہیں اور الحمدللہ وہ دونوں وجوہات اب آپ کو پتہ ہیں. ایک ہے اس اسم سے پہلے حرف جر آ جائے. دوسرا وہ مضاف الیہ ہو. اب ایسا کریں کہ اپنی نوٹ بک میں یہ پوائنٹ لکھ لیں. کسی بھی اسم کے حالت جر میں جانے کی صرف 2 وجوہات ہوتی ہیں. نمبر 1 اسم سے پہلے حرف جر آ جائے. نمبر 2 وہ اسم مضاف الیہ ہو. اب ہم ایک ایک ایگزامپل اس طرح سے لیتے ہیں. پہلے ہم ثواب کے میننگ مطلب عربک میں میننگ لکھیں گے اس کا پھر اس کو دیکھیں گے کہ وہ حالت مضاف میں ہے یا نہیں. اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کا ہم ہلکا کریں گے اعراب ہلکا کریں گے. وہ حالت مضاف میں نہیں ہوگا. وہ حالت مضاف میں لے جائیں گی آپ. ٹھیک ہے. ثواب کی عربک ہوئی ثوابن. ٹھیک ہے. اور دنیا کی عربک ہوگی الدنیا. جی تو اب ثواب جو ہے اس کا اعراب ہم ہلکا کریں گے. یہ ثواب بن جائے گا ثوابو. ہاں ثوابو بن جائے گا. جی. اور الدنیا کو حالت جر میں لے کے جائیں. الدنیا جو ہے اس کا اعراب تو ہلکا نہیں ہوگا. اعراب کی تو یہاں بات نہیں ہو رہی کیونکہ ال سے شروع ہو رہا ہے اور ہمیں مضاف الیہ کا اعراب ہلکا بھی نہیں کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مضاف الیہ کی شرائط آپ سوچیں. آپ کو 2 شرطیں دی تھی مضاف الیہ کی. نمبر 1 میں بتاتی ہوں مجرور ہوگا اور یہ ال کے ساتھ یا تنوین کے ساتھ آتا ہے. تو مجرور کریں بس اسے مجرور حالت میں لے جائیں.
सईदा मैं थोड़ी सी हेल्प करूं? मैम बता दें। हाँ देखिए, ये जब आपने दुनिया दुनिया का तर्जुमा किया आपने, तो आपने बोला दुनिया, और ये था रफा की हालत में, और आपको जी पता हाँ। है कि दुनिया जो है ये मबनी इस्म है, तो ये रफा नसब जर तीनों ही हालतों में दुनिया ही रहेगा। तो पहले जी मैम। ये जब रफा की हालत में था तब भी ये दुनिया था। अब जब आप इसको चेंज करके अब आप जब जर वाला लिखेंगी तो भी ये दुनिया ही रहेगा, ठीक है, जर की हालत में भी। क्लियर हो गई ये बात सबको? जी सबको ये मैम। बात क्लियर है कि जी मुझे फिर अब देखिए, अब आप, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूं कि पिछली कोई भी चीज आप भूल नहीं सकती हैं, मतलब भूलना अफोर्ड नहीं कर सकती हैं पिछली कोई भी चीज, वरना फिर परेशान हो जाएंगे हम। अब जब हम मुरक्कब बना रहे हैं तब हमको वो मबनी, अस्म, गैर मुनसरिफ और ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। मुझे एक सवाल प्लीज पूछना है। कौन? सईदा बोल रही? नहीं, मैं जाजिया बोल रही हूँ। अस्सलाम हाँ वालेकुम। जाजिया, वालेकुम अस्सलाम, पूछे। मुझे ये पूछना था कि ये दुनिया का जो हमने तर्जुमा किया है तो हमने अद दुनिया क्यों लिखा है? इसको क्यों हमने अद दुनिया क्यों किया? दुनिया इसलिए किया क्योंकि दुनिया जो जिसकी बात हम कर रहे हैं वो मारफा है दुनिया, और दुनिया को आप अच्छा, मारफा बनाने के लिए अल लगाएंगी ना। सही 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 ठीक है, सही। कि ठीक है, ठीक। दुनिया हमारी जानी पहचानी चीज है, और हम इसी सवाबुद दुनिया, मतलब हम बात कर रहे हैं तो हम इस दुनिया की बात कर रहे हैं, फोकस मतलब कि वी नो इट, तो ये मारफा हो गया, इसलिए अल लगेगा यहाँ पे, ठीक है। सही सही, जज़ाकल्लाह खैर। तो सईदा, देखा आपने कि हम, आपने जब पहले लिखा था, तर्जुमा किया था दुनिया का, तो आपने बताया था अद दुनिया हालत रफा में। अब जब आप इसको हालत जर में ले जाएंगी तो आपको पता है कि अलिफ पे खत्म होने वाले अस्मा मबनी होते हैं। दुनिया, ये अलिफ पे खत्म हो रहा है ना, तो ये मबनी जी। इसमें, तो इसलिए ये हालत जर में भी यही रहेगा। तो हालांकि आप रफा से इसको जर में लेके जा रही हैं, ये पहले रफा था बाद में जर में गया, लेकिन शक्ल उसकी क्या रही? अद दुनिया। और आपकी फाइनल चीज जो तैयार हुई वो क्या हुई, मैं नीचे दिखा देती ऐसे, सवाबुद दुनिया। क्लियर हो गया सईदा? जी मैम, क्लियर हो गया। आपको आता था इसलिए कि आपने तो पहले ही आंसर दे दिया था, लेकिन मैं चाह रही थी कि ये सारी चीजें भी क्लियर हो आपको, ठीक है, ये हालत जर भी क्लियर हो, और ये मबनी गैर, सारी बातें हमको रिवाइज होती रहे और याद रहे। जज़ाकल्लाह सईदा, आपने बिल्कुल सही बताया। और महविश भी अब करेंगी नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसको क्रिस क्रॉस करेंगे बिल्कुल। तो आखिरत जो है नहीं, पहले सवाबों को बताया मैं क्या लिखूं यहाँ पे, जी इसका क्रिस क्रॉस तर्जुमा करें। करेंगे तो जी इसका सवाबुन हो जाएगा, जी हाँ, और आखिरत जो है आखिरत ही रहेगा, अल आखिरत, अल इसको भी आखिरत। अल आखिरा ही कहेंगे, ठीक है। जी मैम। और अल आखिरत। जैसा कि भी जजिया का सवाल था, और बाकी लोगों के भी दिमाग में आ रहा होगा कि हम कैसे करेंगे, तो आपको बार बार मैं कह रही हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए, लिखना नहीं है, कुरान में ये लिखा हुआ मिलेगा, आपको पहचानना है, ठीक है। आपको ये अल वगैरह नहीं लगाना है, वहां लिखा हुआ होगा। और जब, अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे अल आखिरतुन लिखूं, मैं क्या लिखूं? मैं जी अल आखिरत, जी अल नहीं, आखिरत। एक सिंगल हरकत लगाऊं? जी सिंगल हरकत, क्योंकि अल है। वेरी गुड, यही मैं सुनना चाह रही थी, ठीक है, क्योंकि अल है इसलिए हम लिखेंगे अल आखिरतु, ठीक है। अब आप इसको अब बनाएं, ये तो आपने भी तर्जुमा किया, अभी आपने मुरक्कब नहीं बनाया, अब इसके ऊपर आप मुजाफ के कवायद अप्लाई करें। जी ये मुदाफ होगा तो ये खफीफ हो जाएगा, तो इसका एराब हम हल्का कर देंगे तो सवाबु हो जाएगा। जी, और फिर जो है अल आखिरतु है, तो इसको जो है हम मजरूर हालत में लेके आएंगे, तो ये अल आखिरती हो जाएगा। जी हाँ, सवाबुल आखिरत। तो ये हो गया सवाबुल आखिरती, ठीक है। जी ठीक है, क्लियर है महविश? जी जी मैम। आसान है? जी मैम।
वेरी गुड। चलिए जज़ाकल्लाह। और अब आ जाए सुरैया। अब देखें अभी तक आपने तनवीन को खफीफ किए, अब आएंगे हम नून अराबी पे। फायजा आप ये बताइए, सुबह के दो किनारे, तो ये दो किनारे की अरबी आती है कि मैं बताऊं? जी मैम बता दें। चले मैं लिख देती हूँ। तरफानी, आपको पता है ना कि आनी की साउंड होती थी, है ना? ये तो जी पता है मैम। ना? जी तो ये तरफानी, ये दो किनारे हो गए। तरफा किनारा, तरफानी दो किनारे। दो किनारे तस्निया का। और इसकी भी बता देते हैं, अन्नहारू। जी मैम तो अन्नहारू। ये आपका तर्जुमा हो गया। अब आप बनाएंगी मुदाफ और मुदाफ इलैह। चलिए तरफा का इराब हल्का करें। तरफा जी हाँ। और नहारी मजबूर हाँ। आएगा। तो अब क्या हो जाएगा? तरफा तरफन नहारी। जी हाँ, यहाँ देखिए तरफन नहारी। और जब आप जी ये पढ़ेंगी जब आप, तो आप पढ़ तो रही है तरफन नहारी अलिफ, लेकिन लिखा हुआ जब आप देख रही है ना तरफन नहारी, तो ये फा के बाद की अलिफ बता रही है आपको कि दो किनारे हैं। अब आप जब तर्जुमा करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तरफा। ये जी अलिफ मैम। बता रही, क्योंकि ये था तरफानी और ये मुदाफ की वजह से नून अराबी गिर गया, तो ये हो गया तरफन नहारी। ये अलिफ बता रहा है यहाँ पे कि सुबह के दो किनारे। ठीक है, जी तस्निया का जुमला आ गया। बिल्कुल इंटरेस्टिंग लग रहा है। जी मैम। चलिए जज़ाकल्लाह खैर फायजा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे एक वर्ड आपको दिख रहा है से क्या होता है? मिन। मैं थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि मिन कैसा हर्फ है आयशा? जी हर्फ जर है ये। वेरी गुड, वेरी गुड, हर्फ जर है। ठीक है, तो ये मिन आएगा शुरू में यहाँ पे। मिन जो है मैं ऊपर लिख देती हूँ, क्योंकि मैं इरेज वाले ऑप्शन में फिलहाल नहीं जाना चाहती हूँ। तो ये था तरफानी। क्या था? तरफानी। जब इससे पहले मिन आएगा तो मिन क्या कर देगा? इसको हालत जर में लेके जाएगा। आयशा जी हाँ जी बाजी। जी हाँ, तो तरफानी को आप हालत जर में लेके जाइए। बाजी वो हालत जर में ही है। कैसे जर में? कैसे है बेटा? आनी की साउंड क्या होती? आनी। आनी आनी। अच्छा तरफानी। जी हाँ, इस पोएट्री को तो पक्का कर लें कि रोज 3 बार पढ़ना है सबको, एंटीबायोटिक डोज की तरह। 3 बार इसको दिन में सुबह दोपहर शाम पढ़ लिया करे। ऊना ईना ईना आनी ऐनी ऐनी, ये सब मतलब ऊना पूरी लाइन से वो जो आपके पास है ना रोज, उसको रोज 3 बार पढ़नी है। तो आनी की साउंड जो है रफा की साउंड थी। जब भी हम कोई इसम का तर्जुमा करके लिखते हैं तो हम रफा में लिखते हैं, फिर डिफरेंट चीजें उसको डिफरेंट नसब या जर में ले जाएंगी। अब ये आनी की साउंड और हमारी जर की साउंड थी ऐनी की, तो ये क्या बन जाएगा? तरफैनी। ठीक है, तो मैं इसको यहां लिख देती हूँ, मिन तरफैनी। तो ये हो गया आपका दो किनारों से। और फिर चली जाइए सुबह का तर्जुमा कीजिए। ये क्या होगा आयशा? अन्नहारू। वेरी गुड, अन्नहारू। अब चलते हैं मुदाफ बनाइए आप। ठीक है, अब तरफैनी को आप चेंज कीजिए। मिन तरफई। वेरी गुड, तो ये हो जाएगा, मैं फिर से लिखूं यहाँ पे, मिन तरफई। ये ऐसे हो गया ना, सुकून हो गया। और चलिए अब इसको यहाँ पे आइए, अन्नहारी। सॉरी ये नहीं है यहाँ, अन्नहारी। ठीक है, अब ये आप देखें कि अन्नहारी जो आप बोल रही हैं, तो यहाँ शद लगी हुई है ना। शद का क्या मतलब होता है? शद में 2 नून मौजूद है, एक नून सुकून के साथ और दूसरा नून फतहा के साथ। तो जब 2 सुकून, इस बात को यहाँ पे अच्छी तरह समझ लें,
कि जब दो सुकून एक साथ आ जाते हैं तो वो पढ़े नहीं जा सकते। ठीक है, आप किस तरह दोनों को मिलाएंगी? अब उसका तरीका ये है कि यहाँ पे इस सुकून को हटाकर यहाँ पे जेर ऐड कर दी जाती है। ठीक है, ये था तरफई, ये था यही चीज, ये नून हटके, लेकिन मिलाकर पढ़ने के लिए एक जेर ऐड होती है, ये इजाफी जेर, तो ये बन जाता है मिन तरफइन नहारी। आप देखिए यहाँ पे ये प्रोसेस यहाँ समझ में आ गया आपको? नहीं जी बाजी। आयशा, मैं आपसे पूछ रही हूँ लेकिन आप पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है? आपकी बाजी समझ में आ गया? हाँ जी बाजी, बहुत अच्छे से। जी हाँ, नून, आपने नून अराबी हटाया तो आपके पास यहाँ पे देखिए क्या था। आप देखिए, मैं पूरा इस तरह लिखती हूँ, या था और फ के ऊपर फथा था और या के ऊपर, जब आपने नून और जेर दोनों हटा दिया तो आपके पास बचा फ और या सुकून वाला। ठीक है, या सुकून वाला तरफई। अगर ये अलग होता तो आप इस तरह पढ़ लेते, लेकिन अगला लफ्ज जो है वो तशदीद से शुरू हो रहा है और इसको आपको यहाँ मिलाना है। तो दो तशदीद का पहला हर्फ सुकून होता है, यहाँ दो नून मौजूद है, पहला नून सुकून के साथ है और दूसरा नून फतहा के साथ है। अब नून सुकून और या सुकून को आप कैसे मिला के पढ़ेंगी? तो इसके लिए ये सुकून हटा के यहाँ जेर ऐड की जाती है और ये बन जाता है मिन तरफइन नहारी। ठीक है, अगर इस वक्त किसी, देखिए एक बात कि इस तरह के मुरक्कब आपको इम्तिहान में नहीं आएंगे, पहचानने के लिए आएंगे, लिखने के लिए तो आएंगे नहीं। लिखने के लिए आएंगे भी तो वो जो शुरू में है अब्दुल्लाही और किताबुल्लाही, उस तरह, मतलब बहुत ही सिंपल वाले ही होंगे। मैं ये कुछ एग्जाम्पल्स इस तरह के लेके आई जिससे कि आप जब अपने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करें तो आपको बहुत आसानी हो और चीजें समझ में आए। खाली आप ऐसे रट्टा ना मारे, आपको समझ में भी चीजें आए कि ये कैसे दो का लफ्ज, तरफई में दो का कैसे मीनिंग आ रहा है। तो ये तरफईनी था, ठीक है, नून अराबी हटा है और ये जेर यहाँ पे आ गई है, तरफई हो गया। तो ये यहाँ से आपको दो किनारे का मीनिंग आ रहा है। अगर पूरी क्लास में किसी की भी समझ में ये पॉइंट ना आ रहा हो तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन मैं जैसा कि मैं कह रही हूँ बार बार कि ये आपको, अगर आप इसको अव्वल से तो छोड़े ना, लेकिन छोड़ भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इस तरह के आएंगे नहीं, लेकिन बहरहाल कुरान में तो आएंगे, तर्जुमा आपको करना होगा। तो इसलिए मैं इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स लेके आई थी। तो किसी की आवाज नहीं आई तो मैं इमेजिन करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सबकी समझ में आ गया कि ये किस तरह से मिन की वजह से ये गया हालत जर में और तरफा से ये बन गया तरफई और फिर ये जेर ऐड हो गई क्योंकि आगे हमें अन्नहारी के नून से जाके इसको मिलाना था। एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपने ऊपर देखा कि तरफन नहारी, यहाँ पे तरफानी था, ये तरफानी मतलब हालत रफा में था, और अन्नहारी, तो ये तरफानी से क्या हो गया था, नून अराबी हट गया और ये हो गया तरफन नहारी, सुबह के दो किनारे। इससे तरफा से हमको पता चल रहा है कि ये दो किनारे हैं और यहाँ पे ये हालत रफा में, इसी को क्योंकि कुरान में इस तरह से आया है तो हम ये वाला लेके बता रहे हैं। यहाँ पे ये हर्फ जर मिन आया, मिन जो है वो तरफा को तरफई, तरफानी को तरफईनी कर देगा। मैं यहाँ लिख के दिखाती हूँ, तरफानी, आनी की साउंड याद रखें कि बार बार मैं कहती हूँ कि जबर जेर पेश से आप रफा नसब जर को डिसाइड नहीं करेंगी। आनी की साउंड हमेशा, बार बार मैं कहती हूँ, अपनी उसी पोएट्री को आप याद रखें कि उन अन इन आनी ऐनी ऐनी, तो ये आनी जो है ये फर्स्ट कॉलम में है तो ये रफा की साउंड है, अभी ये रफा की हालत में है। इसके पहले अगर मिन आ जाएगा तो जैसा कि आपको पता है मिन हरफे जर है, ये अपने आगे आने वाले इस्म को मजरूर कर देता है, हालत जर में लेके चला जाता है। अब देखते हैं कि हालत जर की साउंड क्या होती है मुसन्ना की, आनी ऐनी ऐनी। अब हम लास्ट कॉलम में चले जाएंगे ऐनी और इसको बना देंगे तरफैनी, तरफैनी, ठीक है। अब ये हो गया तरफानी हालत जर में तरफैनी।
ठीक है, इसको हम यहाँ लेके आते हैं अब इसके तर्जुमे में, दो किनारों से। तो ये हो गया मिन, एक्स्ट्रा चीजें हम नहीं लिखेंगे, एक्स्ट्रा एराब हम नहीं लगाएंगे कि जिससे आपको फोकस रहे उस पे। उसके बाद ये तो हो गया मिन, दो किनारों से का तर्जुमा हो गया मिन तरफैनी। उसके बाद सुबह का अन्नहारू, ये हो गया इसका तर्जुमा। अब हमें मुरक्कब में इजाफी बनाना है, तो सबसे पहले मुजाफ को हम तैयार करेंगे। मुजाफ का एराब हल्का होगा, ठीक है, तो इसका एराब हल्का करेंगे तो ये नून एराबी गिर जाएगा और बचेगा मेरे पास, इसको गौर से देखिए अब, मिन तरफई, ठीक है, नून गिर गया, या साकिन बचा हुआ है, तो ये हो गया मिन तरफई। और यहाँ पे ये आपका है अन्नहारू, इसको दोबारा मैं नहीं लिख रही हूं। अब मैंने बताया कि यहाँ तरफई, अब ये एक साथ हमको पढ़ना है, मुरक्कब है हमारा, हमें एक साथ तिलावत करनी है। तो आखिरी हर्फ इसका साकिन, और जिस लफ्ज के ऊपर तशदीद होती है उसको हम खोल के दिखा दें। यहाँ दो नून है, पहला साकिन और दूसरा फथा, सॉरी यहाँ पे यही बन जाता, इसको नून शब्द फथा के साथ का मतलब क्या होता है, दो नून, पहला साकिन और दूसरा फथा वाला। अब आपको या साकिन और नून साकिन मिलाना है, आप मिला के देख लें, नहीं मिला सकती, नहीं प्रोनाउंस कर पाएंगी, तो उसको पढ़ने के लिए आप ये बात याद रखें कि ये है दरअसल तरफई, लेकिन पढ़ने के लिए यहाँ पे एक सुकून हटा के जेर लगाई जाती है और पढ़ा जाता है मिन तरफइन नहारी, क्योंकि इसको भी हालत जर में कर देंगे आप, मुजाफ इलैह बनाएंगी, तो ये इसकी पहली कंडीशन यही आप करेंगी। बाद में आप ये बात हमको बताएंगी कि अल के साथ, तो हाँ अल के साथ तो ये है, लेकिन हालत जर में ले जाएंगी, इसकी ये कंडीशन है। तो आपका तैयार हो गया मिन तरफइन नहारी। गजाला क्लियर हो गया? जी जी मैम, क्लियर हो गया। ठीक है, जहानों का रब, मैम इसको क्रिस क्रॉस करेंगे। सबसे पहले रब का तर्जुमा करेंगे रब्बुन, और जहानों, एक जहान आलमुन होता है और दो जहान होंगे आलमूना। जी तो दो जहान नहीं सादिया, दो जहान नहीं, जहानों का जमा, जहानों, ये तो जमा है ना, दो नहीं है। बिल्कुल, आलमूना। तो रब्बुन का एराब हल्का करेंगे और इस पे लामो तारीफ भी क्रॉस हो जाएगा, वो नहीं लगेगा, तो इसका एराब खफीफ करके रब्बू बन जाएगा। अब आगे हमारे पास जो मुदाफ इलैही को हमने ये मुदाफ तैयार हो गया। फिर मुदाफ इलैही को जो हमने तैयार करना है उस पे हम अलिफ लाम दाखिल करेंगे, यानी कि लाम तारीफ या मौरफ बिन लाम दाखिल करेंगे, और उसके बाद उसको मजरूर हालत में लेकर जाएंगे, तो आलमूना का आलमीना बन जाएगा तर्जुमा। तो रब्बुल आलमीना हमारा मुरक्कब इजाफी तैयार हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने। पहले रब्बुन, इसका रब का तर्जुमा करेंगे रब्बुन, और जहानों का तो आलम होता है एक जहान, और आलमूना इसकी जमा सालम बनेगी, तो आलमूना, अल आलमूना हम इसको रफा के उसके अल के साथ लिखेंगे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है मुजाफ इलैह या तो अल के साथ होता है या तनवीन होती है, तो ये हो जाएगा अल आलमूना। तो ये इसका एराब हल्का किया सादिया ने, तो ये हो गया रब्बू, और इसको जो है हालत जर में ले गए, तो हालत जर की साउंड क्या थी, ऊना ईना ईना, तो लास्ट कॉलम में हमको ईना की साउंड आ रही है, तो हम इसको ईना की साउंड बना देंगे। तो ये हो गया रब्बुल आलमीना। वेरी गुड सादिया, जज़ाकल्लाह खैर। ये है आपका तैयार हुआ मुरक्कब। अब आप बताएं जज़ाऊ की अरबिक बताएं। जज़ाऊ की अरबिक मैम जज़ाऊ ही होगी, जज़ाउन। जी हाँ, जज़ाउन ही होगी, वेरी गुड। और काफिरों की जमा ये काफिरून। हाँ, अल लगा लें, अल लगाए ना, अल काफिरून। अल
अलकाफिरून मैम होगी। हाँ पूरा बोले, आखिर तक हरकत लगाएं। अलकाफिरून, हाँ अलकाफिरून, अलकाफिरून, हाँ अलकाफिरूना, हाँ है ना। अभी आप यहाँ पे वन सुकून ना करें, मतलब यहाँ पे ग्रामर के हिसाब से आप सारी आखिर तक की हमको हरकत बताएंगी। अल काफिरूना, जिससे हमको पता चल जाए कि आपने ऊना की साउंड लगाई। ठीक है, ऊना की साउंड क्या साउंड होती है? जमा जी की मैम, किस हालत की? जमा, जी जमा की, रफा की, जमा की, जमा की, रफा वेरी की गुड, हालत। जमा की रफा की साउंड होती है। अब आइए आप तैयार कीजिए, जज़ाउन को मुदाफ बनाइए। मैम जजा उन को जब इसको हल्का करना होगा तो इसकी एक पेश हटा देंगे, जजाऊ हो जाएगा। और ऊना को जब इसको ऊना की साउंड को ईना में करेंगे जर की हालत में, जजाउल काफिरीना। वेरी गुड, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। ये थोड़े से हम ऐसे लेके आए थे कि आपको जैसा कि हमने बताया कि आपको मुसन्ना की भी प्रैक्टिस हो जाए, जमा की भी प्रैक्टिस हो जाए और सारी चीजें क्लियर हो, तो आप कुरान के सारे पहचान सके। और जैसा कि मैंने कहा, अगर ना पहचान सके तो आप याद रखें कि अभी आप एलिमेंट्री कोर्स कर रही हैं, परेशान होने की बात नहीं है। बहुत कुछ सीखना बाकी है और बहुत कुछ सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत ही सही बताया, देखिए एकदम आपका आंसर सही था, जज़ाउल काफिरीना। जज़ाकल्लाह अनीस। चलिए। दो मशरकों का रब, हम्म मशरिकानी। नहीं नहीं, पहले आप इस क्रिस क्रॉस नहीं करेंगी? क्रिस क्रॉस करेंगे मैम। हाँ तो पहले रब का हमें बताएं। अच्छा सॉरी, रब्बुन। वेरी गुड, रब्बुन। अब दो मशरिकों की हमें अरबिक बताएं। अरबिक में भी यही वर्ड है जी। मशरिकानी। अल नहीं लगाएंगे? अल मशरिकानी। हाँ, अल मशरिकानी। आनी की साउंड कैसी साउंड होती है? रफा नसब जर किसकी साउंड है? रफा की। वेरी गुड, ठीक है। अब आप मुदाफ बनाएं। रब्बू। वेरी गुड, रब्बू। और इसको रफा से जर में लेके जाएं। अल मशरिकैनी, अल वेरी मशरिक। गुड, हाँ, अल मशरिकैनी, ठीक बोला आपने। अब आप क्या करेंगी? रब्बुल मशरिकैनी, दो मशरिकों का रब। वेरी गुड। तो ये हो गया आपका मुरक्कब इजाफी तैयार, रब्बुल मशरिकैनी। बहुत सही बताया मेहर आपने। मैं भी शाप आ जाए जल्दी से, शाबाश। जी मैम। आदम के बेटे। जी मैम, बेटे की इब्नु, इब्नुन। नहीं, इब्न तो बेटा होता, अगर हम लिखते आदम का बेटा तो इब्न कह देती हैं आप, इब्नुन, ठीक है। लेकिन यहाँ तो हम कह रहे हैं आदम के बेटे। बेटे की मैं बताऊं बेटे की, मतलब बेटा की प्लूरल बताऊं? बनूना। वेरी गुड, बनूना। अच्छा, एक बात और मैं जो कह दूं इस क्लास के लिए, कि जब भी क्लास चल रही हो ना और मैं किसी से पूछ रही हूँ या कुछ हो, तो प्लीज चैट में आप आंसर वगैरह ना करें, ठीक है। चले, बनूना, बहुत सही बताया आपने, जज़ाकल्लाह। जिससे हम पूछ रहे हैं ना उसको सोचने दें और इंजॉय करें क्लास में। अपना आपको आंसर आ गया तो आप दिल ही दिल में खुश हो जाएं कि अरे वाह, मुझे तो आ गया, बहुत पहले आ गया, टीचर के पूछने से पहले आ गया। लेकिन चैट में वहां आंसर वगैरह मत लिखिए। चले, अब ये हो गया बनूना। और आदम, इसको क्या कर दे हम? वो आदमू। वेरी गुड, आदमू। अब आइए इसका एराब हल्का कर दीजिए। बनूना का मैम, इसका तो यही लग रहा है, बनूना ही। नहीं, बस ये बनू कर दे, नून को हटा दे। जी जी। बनू आदमा। आपने आदमा क्यों किया? आदमी क्यों नहीं किया? मैम वो आपको हालत जर में ले जाना है ना। जी, आदमू का मैम नसब और जर दोनों में आदमा ही बनेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। और वजह भी बताएं।
मैम क्योंकि ये गैर मुंसरिफ है, ये दो हालतों में ही कन्वर्ट होता है। वेरी गुड, ये गैर मुंसरिफ इसम है तो नसब और जर दोनों हालतों में ही फतहा ही रहेगा, आदमा ही रहेगा, आदमू, आदमा, आदमा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि आप लोगों को याद है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। 6 नबियों के अलावा बाकी सारे अंबिया गैर मुंसरिफ हैं। ठीक है, अंबिया के नाम गैर मुंसरिफ है, अंबिया नहीं, अंबिया के नाम गैर मुंसरिफ हैं। तो इस वजह से ये हो गया बनु आदमा। और महविश आपने बताया ये? जी मैम मैंने बताया। देखिए बनु आदमा, तो आदम के 2 बेटे। बाजी मैम। मुझे इससे पहले वाले में एक क्वेश्चन पूछना था कि उसमें हमने अल क्यों नहीं लगाया? कहाँ नहीं लगाया? आदमा में जी जी जी। आप जो है नाम से पहले ये तो प्रॉपर नाउन, इससे पहले अल कहाँ लगता है? ठीक है बाजी, ठीक है, यही पूछना था मुझे। जी हाँ, तो आदमो ये प्रॉपर नाउन है ना, जिसको कहते हैं इसमें आलम, तो इसमें नहीं लगता। ठीक है, ठीक है अल नहीं बाजी। लगता इसमें, ये ऑलरेडी ये प्रॉपर है। चलिए, आदम के 2 बेटे। ज़ैनब ग्रुप 1 से बताएं, अब 2 बेटे की आप करें तर्जुमा। जी, 2 बेटों की होगी बनानी। नहीं, एक बेटे की नहीं, बताएं आप, एक बेटे की अरबी बताएं। एक बेटे की बनी होता है ना? नहीं, ये वो होता है, स्क्रीन पे दिख रहा है। इब्न होता है, इब्न होता है, सॉरी। हाँ, एक बेटे की इब्नुन होती है। अब चले, अब इसका आप तस्निया बनाएं। इब्नानी। वेरी गुड। चलिए ज़ैनब, अब आप इसका 2 बेटे का यहाँ पे इब्नानी लिखूं मैं? क्लियर है? जी जी मैम। क्योंकि हमेशा याद रखें कि जब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, तो मजा भी बहुत आएगा और गलती भी नहीं होगी हमसे। अगर हम एकदम जंप करेंगे तो हो सकता है कि कुछ वो हो जाए। और याद रखें, आप सब लोग अच्छी तरह समझ लें कि मुसन्ना यानी जो 2 वाली चीजें होती हैं वो हमेशा सालिम बनती है। जैसा कि मैंने बार बार बताया, जमा में प्रॉब्लम है कि वो सालिम भी बनता है और मुकस्सर भी। मुसन्ना किसी भी चीज का, 2 कुर्सी, 2 पाकिस्तान, 2 कुछ भी, हर चीज को हम आनी लगा लगा के बना लेंगे। ठीक है, तो इब्नु से हो गया ये इब्नानी, और ये क्या हो जाएगा? जल्दी बताएं इकरा। अरे सॉरी आदमू। ज़ैनब, आदमू। अब इसको जो है आप एराब हल्का कीजिए। इब्नानी का नून खत्म कर देंगे तो बन जाएगा इब्ना, हम्म, और आदमू का कर देंगे आदमा। आदमा ही करेंगी, आदमी नहीं करेंगी ना, नो आदमा करेंगे। क्योंकि गैर मुंसरिफ है। तो ये हालत जर में भी। अब ये बताइए, ये आदमा जो है ये नसब की हालत में है या जर की हालत में है? जर की हालत में। ठीक है, अब आपको क्लियर धीरे धीरे चीजें होना शुरू हो गई ना। जब हम पहले यस मैम। बोलते थे कि हालत नसब और जर दोनों में, तो सवाल ये आता था कैसे पता चलेगा? जब इब्ना के बाद होगा तो हमको पता चल जाएगा कि ये हालत जर में है, क्योंकि मुज़ाफ इलैह हमेशा हालत जर में होता है। ठीक है, तो आपका बन गया इब्ना आदमा। ये देखिए, ये बन गया। ठीक है, यस मैम। बस हमें लगता है ये हमारा आखिरी है ये वाला एग्जाम्पल, और बहुत इंटरेस्टिंग है। सूरह यूसुफ से लिया ये हमने। जेल के 2 साथी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फजाना, जी जी। चले, 2 साथी। एक साथी की होती साहिबुन, साहिबानी। हाँ, अस तो नहीं लगाएंगी। चले, तो ये क्या होगा? साहिबानी। जी। ठीक है, और जेल की क्या होती है? सजनी, सिजन, सिजनुन, सिजनुन जेल को कहते हैं। हाँ असिजनुन। हाँ, अल के साथ एक ही हरकत आएगी, तो असिजनु। ठीक है, सिजनुन। अब बनाइए मुरक्कब। साहिबानी को नून को गिरा देंगे तो साहिबा, और असिजनु, असिजनु ही रहेगा। सिजनुन से सिजनी हो जाएगा, जेर लगा देंगे। साहिबा अल ये सिजनी। देखिए गजाला, एक बात अच्छी तरह समझ ले, मुजाफ से पहले अस तो आप बिल्कुल बोले नहीं। अस मुजाफ में अल आएगा नहीं। इसको बहुत अच्छी तरह पूरी क्लास याद रख ले कि जब ये मुजाफ है तो
تو آپ यहाँ पे अस-साहिबा तो बोले ही नहीं, मुजाफ अल भी नहीं लेता और इसका एराब भी हल्का होता है। ये दो इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग शर्तें हैं, ठीक है। तो आप कभी भी अस से शुरू नहीं करेंगे, आप क्या बोलेंगे? साहिबा साहिबल सिजनी, ये सीन जो है वो शमसी है ना, तो साहिबस सिजनी, ठीक है। साहिब, जी जी। अब एकदम आपने मुरक्कब बहुत सही बताया था, वो तो एक्स्ट्रा चीजें हम आपको बता रहे हैं। गजाला के बाद बस एक जरतशा आ जाए अगर वो मौजूद है, उसके बाद हमारी क्लास खत्म होगी इंशाअल्लाह ताला। फातिमा ग्रुप 2, ठीक है। अब ये मिन जब लगेगा तो साहिबानी क्या बन जाएगा फातिमा? मैम मिन साहिबैनी। वेरी गुड, ठीक है। मिन और ये हो, मिन जब आ जाएगा आगे तो ये हो जाएगा साहिबैनी, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका तर्जुमा। और जेल का तर्जुमा अभी किया था आपने? मैम जेल का अरबिक भूल गई मैं भी। हाँ, अस-सिजनु। अब आप इसको इसका गिराइए, इसका नून गिराइए तो क्या बन जाएगा ये? मिन साहिबै सिजनु। मिन साहिबै सिजनु। अच्छा, नहीं तो आप तो मिला के पढ़िए, इसको कैसे पढ़ेंगी? जब यहाँ पे ये है, अब आप क्या करेंगी कि यहाँ पे जैसा कि हमने कहा कि या जी? सीन के साथ मिलेगा। या सीन के साथ कैसे मिलाएंगी आप? मिन साहिबै मैम के नीचे जीर आ जाएगी। हाँ, ये बोलना है आपको, सुकून हटाकर या के नीचे जेर आ जाएगी और ये हो जाएगा मिन साहिबैस सिजनी। जी मैम। ठीक है, क्लियर हो गया सबको ये बात यहाँ पे? जी। और ये देखिए जब आएगा तो आप आराम से यहाँ पे आप समझ जाएंगी। जब कुरान में आए सूरह यूसुफ पे आप पहुंचेंगी तो आपको पता चलेगा कि मिन की वजह से ये साहिबानी साहिबैनी बना और ये नून अराबी गिर गया, या के ऊपर सुकून था, सुकून से मिल नहीं सकता तो इसके लिए जेर ऐड की गई और ये होगा मिन साहिबैस सिजनी, और जेल के दो साथियों से। ये होमवर्क आपको मुजाफ दिया गया है, मुजाफ इलैह। आपको मुजाफ को पहले रेडी करना है जैसे क्लास में कर रही थी, फिर मुजाफ इलैह को रेडी करना है और फिर दोनों को मिला के आपको मुजाफ मतलब मुरक्कब इजाफी बनाना है, जैसा आप क्लास में कर रही थी वैसे ही। और इसका जो लास्ट यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वहां पे आप बेशक की वल अर्दु और व मूसा को आप छोड़ दीजिएगा, आप बस नूरुन और यहाँ से अस्समावातु, यहाँ से सुहुफुन और इब्राहिमु, व मूसा और वल अर्दु को आप छोड़ देंगी, आप नहीं लिखेंगी। तो ये बस आपका रिटन होमवर्क ये है कि आपको ये मुदाफ मतलब मुरक्कब इजाफी बनाकर कोशिश करें कि आज ही कर लें। अगर आज करेंगी तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, वरना अगली क्लास से पहले पहले जरूर कर लीजिएगा। क्लास खत्म करते हैं। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।